लिवर तो मैंने लिखा, यहाँ सब स्क्रिप्ट में मैं एक्सिस लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे मैं लिवर किस एक्सिस से ले आऊं। इस केस में मैं लिवर्स ले रहा हूँ एक्स एक्स से। क्लास चल रही है क्या भाई? माइक बंद कर लो अंकुश भाई, कभी तो क्लास से फ्री होने दो हमें। भाई मालूम है पढ़ाई हो रही है भाई, कर लो बंद। ऐसे घबराहट हो जाती है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और हम मोबाइल चला रहे हैं। भाई क्लास रिकॉर्डिंग पे है, क्लास रिकॉर्डिंग पे, थोड़ा सोच समझ के बोलो। भाई किसी के पास टाइम नहीं है, पूरी रिकॉर्डिंग कोई चेक करेगा वापस। ब्रेक टाइम, ब्रेक टाइम। डीजी शिपिंग वालों को भी हाय बोल दो। किसी को आइडिया है क्या यूएस वीजा की अपॉइंटमेंट मिल रही है क्या? किसने ली हो रिसेंट में? नहीं मिल रही भाई, नहीं मिल रही। ओके। सितंबर तक डेट्स नहीं बता रहे उसमें। बेटा हाँ जी बैच प्लीज कम इन। बेटा मैच हो गया आंसर? ओके Yes, sir. ओके, इफ देयर आर एनी डाउट्स लेट मी नो।
In the meantime, I'm just going to put down the next question on board. This is question number 7, beta. Okay. The water plane areas. Okay, firstly, any doubts in question number 6? If anybody has anything to clarify first. No, sir. Okay. Okay, none from question 6. Now we go to question number 7. Water plane area of a ship are given at draft 6, 5, 4, 3 up to 2 meters. इससे पहले हमने 2 क्वेश्चंस किए थे जिसमें वाटर प्लेन एरिया कील तक दिया हुआ था. इसमें वाटर प्लेन एरिया 2 मीटर तक दिया हुआ है. Then the question says below the 2 meter draft is an appendage. Now why is given appendage? वहां पे कर्वेचर सडनली चेंज हो गया हुआ ज्यादा, तो उसने सेपरेटली कैलकुलेट करके उसका अपेंडेज बना दिया. And he says the volume of the appendage is 3200 cubic meters and the distance of the GC of the appendage from the keel is 1.2 meters. He wants us to find out the displacement of the ship and KB of the ship at 6 meters draft. Does it give you some confidence that you'll be able to solve it? Does it give you some confidence, Peter? Jara diagram banao. Since you said you want to make side elevation, make side elevation and see how can you show this information. How can the information be depicted on the diagram? Please do that. It is somewhat like, let me give you once. अपेंडेज जीसी 1.2 है तो ये 2.4 हो गया. बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन में बता, वहां से पढ़ पहले तो अपने आप क्वेश्चन में पढ़ो ताकि तुम्हें फिर कोई मेरे बताने की जरूरत ना पड़े. जरा ये बेटा ये क्वेश्चन तुम्हारे को याद है बल्कहेड वाला, उसमें this can be taken as an appendage. Here the appendage was a regular geometric shape. Never mind. हमने कैसे किया था? You know it. इस केस में it's a question involving volumes because the ordinates are areas. हाँ बेटा, somebody was asking about distance of GC of the appendage. Question पढ़ के, is it clear now? Yes. Okay. Diagram बनाओ बेटा. And then this is the appendage.
the volume of this appendage is. So now you tell me, firstly, if I need the displacement at 6 meters, then do I need to calculate this volume bound by the black boundaries? Yes or no? What I am now bounding by the black marker. Is this the volume required? Yes or no? Yes, sir. Okay. Do you agree this volume comprises of two distinct volumes? One is this blue shaded and the other is the black shaded, correct? Correct, sir. So if I can calculate them individually, I'll get the total volume by adding the two. Yes, sir. So let us say if I call this as V1 and this as V2, and the distance of geometric center of this volume V1 from keel I call as KB1, and distance of geometric center of this volume V2 I call KB2. So from the question, first tell me what is the value of V2? 3200. 3200. Is that clear to everybody or there are any doubts? Yes. And what is the value of KB2, beta? 1.2. 1.2 meters. Any questions on this? No, sir. Okay. Volume V1 is bound by curvilinear shapes. How many ordinates are there bounding the volume V1? How many ordinates bind volume V1, beta? Anji? Five ordinates. Which rule can be applied? Rule 1. So now my question to you is, do you have the knowledge now to calculate V1 and KB1? जी सर. अगर KB1 कैलकुलेट करना है तो मोमेंट्स किसके अबाउट चाहिएंगे? वॉल्यूम V1 के अबाउट विच एक्सिस? Bottom Keel. axis. Keel. Keel. Correct. So though I know you can do it, but अगर ये दोनों चीज निकल गई, if you are able to get these two things, then can you get the displacement and KB of the vessel at 6 meters, or do you still have any doubts for further steps? अगर ये दोनों चीज मिल जाए, उनमें से एक तो लिखी दी है यहाँ पे, अगर ये दोनों चीज भी कैलकुलेट कर ली, then can you get the final thing? Or anybody has doubt कि क्या करना है हमें बाद में? नहीं. Okay, very good. So बेटा हाँ जी बेटा. सर ये जो अपेंडेज होता है सर, ये स्क्वायर शेप है क्या सर? मतलब इसको स्क्वायर शेप मानना है? नहीं, क्यों स्क्वायर शेप मांगो? कुछ भी शेप हो जाए, जरूरी थोड़ी रेगुलर ज्योमेट्री को. व्हाई स्क्वायर शेप? कुछ भी शेप हो, उसने वॉल्यूम दे दी आपको, देन व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन द शेप? सर क्योंकि उसने जीसी बोला 1.2 मीटर अबव द कील, तो केबी भी सर उतनी. हाँ तो फिर जीसी दे दिया तो उसमें शेप. व्हाई आर यू? माय क्वेश्चन इज, जब उसने वॉल्यूम और ज्योमेट्रिक सेंटर की लोकेशन दे दी कील से, तो व्हाई इज योर इंटरेस्ट इन द शेप? सर बॉयंसी ऊपर नीचे नहीं हो सकती सर? जब उसने जीसी दिया है तो बॉयंसी ऊपर नीचे कैसे होगी? जब इस वॉल्यूम का उसने जीसी दे दिया, तो इस वॉल्यूम की सेंटर ऑफ बॉयंसी, इतनी वॉल्यूम का सेंटर ऑफ बॉयंसी डिफरेंट क्यों होगा फ्रॉम 1.2? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू बेटा. ठीक है सर, समझ गया. वो चाहे पहली बात तो स्क्वायर होगा नहीं. ये क्यों करते हैं बेटा? ये क्यों किया इसने कि अगर आप देखो शिप में थोड़ा नीचे सीधा ऑलमोस्ट थोड़ा कर्व जाएगा, फिर क्या होता है, जहां टर्न ऑफ बिल जाता है वहां पे कर्वेचर सडनली चेंज हो जाता है. करेक्ट? यस सर. तो उसने क्या कर दिया, उसको अपेंडेज की तरह सेपरेटली कैलकुलेट कर दिया और वो वैल्यू आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दी उसने. राइट? उसने इसको सेपरेटली कैलकुलेट करके अपने आप और तुम्हें ये वैल्यूज दे दी हैं. करेक्ट? Yes, sir. Okay. So anybody in the class who feels that he will struggle to get V1 and KB1? Anybody who feels? And anybody in the class who feels that once you get V1 KB1, you will not be able to get the answer? Because more than getting the answer, it's the process. Okay. बेटा म्यूट कर लो बेटा पीछे में. ओके. सो बेसिकली V1 के लिए कैलकुलेशन अगर मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए करूं, तो ऑर्डिनेट्स होंगे 19, 20, 20, 40. एक डाउट है. हाँ बोल दे बेटा. सर ये जो हमने एरिया के लिए किया था, जैसे इसमें ऑर्डिनेट SM POA करा था हमने, है ना?
फिर इसमें भी पीओ वैसे लिख सकते हैं, बट वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम पीओवी की तरफ बढ़ जाएंगे ना। नहीं, पीओए क्यों लिखोगे? पीओवी बनेगा ना। तो जब जब ये जब जब तुम एरियाज, तुम्हारे ऑर्डिनेटर पीओए क्यों बनेगा? हाँ पीओवी बनेगा, सॉरी। हाँ? ओके ओके, हाँ डायरेक्ट लीवर वाली फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छा वो डिस्प्लेसमेंट। लिवर क्यों नहीं बनेंगे? लिवर अगर केबी निकालना तो लिवर तो चाहिए ना। यस नहीं तो यस, KB1 कैसे निकालेगा? हाउ विल यू KB1 फाइंड द निकलेगा। डिस्टेंस ऑफ ओके ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ दिस ब्लू वॉल्यूम फ्रॉम कील? सर, ठीक है सर, ठीक है। तो सिम्पसन्स फिर मल्टीप्लायर, Simpson's multiplier लिख देंगे. I don't want to write. You'll write by yourself. This will become product of volume. You'll fill in by yourself. We'll take liver about which axis for these ordinates? Keel. About Keel, sir. keel. Keel. Now look at the diagram and tell me what is the liver of ordinate 1920. 1920 ka 2 meters. 2 meters. 2 meters two is the liver of this one, 3 for this one, 4 for this one, 5 for this one, 6 for this one. H is equal to 1 meter, obviously. And now you can calculate product of moment, and this will give you V1 and KB1, correct, beta? Okay, I'll be here to address any doubts. I give you now 5 minutes, 1308, 1303 to 1308 for you to close out this question. Anybody having any doubt, please give me a shout. Mic on.
सर इसकी डिस्प्लेसमेंट तो निकल गई सर, के भी निकलवा दो सर एक बारी। क्या प्रॉब्लम है? हमने पीछे क्वेश्चन किए जहां पे हमारे पास दो एरियाज थे, दो डिस्टेंसेस थे रेफरेंस एक्सिस से उनके ज्योमेट्रिक सेंटर के करेक्ट है सर। किए थे, वहां टोटल एरिया और कंबाइंड पूरे एरिया का जीसी निकाला था। यस सर। यहाँ फर्क क्या है? सिर्फ एक जगह वॉल्यूम है। डज दैट गिव यू द हिंट? डज दैट गिव यू द हिंट बेटा? यस और नो बच्चे? सर एक सर के भी निकलवा दो सर, वेट तो निकल गया। पूछ रहा हूं मैं अभी नहीं आ रहा। पहले वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ बेटा कि तुमने दो एरियाज थे A1 A2, दोनों के अलग अलग डिस्टेंस थे ज्योमेट्रिक सेंटर के रेफरेंस एक्सिस से। फिर तुमने टोटल एरिया और टोटल एरिया का डिस्टेंस निकाला था जीसी का या नहीं निकाला था? निकाला था सर। बिल्कुल उसी का है, वहां पे एरिया था, यहाँ वॉल्यूम है बेटा। ओके सर। वहां पर A1 A2 थे, यहाँ पर V1 V2 है। डज दैट गिव यू द हिंट नाउ? ओके सर। करता रहो, फिर भी डाउट मत बोलना। निकल गया बेटा या अभी भी डाउट है? अभी स्ट्रगल कर रहे हो? सर निकाल रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? इज दिस व्हाट यू आर डूइंग? अगर ये कर रहे हो तो फिर कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी पूछो। P1 करेक्ट बेटा, यही होगा ना फॉर्मूला गाइस? यस सर। निकल जाएगा तो बता देना मुझे, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर भी बता देना कि व्हाई वी आर डूइंग इट। सर 3 पॉइंट निकल गया आंसर। तो वो जल्दी छुट्टी का प्लान कैंसिल हो गया सर? बेटा ब्रेक नहीं लेते तो गलती दे देते, क्या काम है कुछ? नहीं नहीं सर, वैसे ही बोल रहा था, रंग वंग लेने चले जाते सर, पिचकारी लेने, होली है कल। कितने बजे मार्केट में धूप थी तुम्हारी? सर टैंकी वाली लेनी है सर, पिचकारी जिस पर टैंकी होती है ना। नहीं, बंद कितने बजे होते हैं मार्केट? भाई मार्केट तो लेट ही बंद होती है सर, तैयार त्यूर होने में टाइम लग जाएगा। जितना लेट जाएगा उतनी सस्ती मिलेगी बेटा। फिर तो सर सुबह ही ले आएंगे। ठीक है, सुबह ले आना। चलो, hey guys, you want to do the next question or you want to take off? सर टेक। सर नेक्स्ट So better take off. Take off. Take off means छुट्टी या take off with the next question? छुट्टी सर, छुट्टी। अभी छुट्टी कर रहे हैं। चलो चलो ठीक है, ठीक है। Never mind, then sign out, no problem बेटा। पर इसको रिवाइज कर लेना प्लीज। हाँ ठीक है सर। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके बेटा। ओके सर, हैप्पी होली सर। सी यू। ओके, थैंक यू, सेम टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर। हैप्पी होली सर। ओके बेटा, बाय। इसको रिवाइज कर लेना भाई, जिसको जितनी जरूरत हो।
हाँ जी सर, हाँ जी।